Hello everyone, it's Mitali Sharma, a first year MBBS student at Pandit Jawaharlal Nehru Medical College, चंबा। अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या जनरली कॉलेज के बारे में क्यूरियस हैं, then this video is for you. I'll share crisp and useful information in this video about the college from a student's point of view. So ये information Google पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, so stay tuned. So if we talk about the location, then it is located in Chamba, Himachal Pradesh. Nearest railway station, then it is Pathankot, nearly 120 kilometers away from Chamba. Nearest airport is Gaggal, Kangra, that is nearly 140 kilometers away from Chamba. So this medical college was established in the year 2016 to near about 2017. So it was nearly 8 to 9 years ago. तो वी हैव मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। एज वी नो कि हमारा नया कैंपस जो है वो सरोल में बिल्डअप हो रहा है एंड अभी रिसेंट हमारी क्लासेस जो हैं वो खंड चंडी पैलेस में ही लग रही हैं, जो कि रेंटेड है बिल्डिंग। वहाँ पे डिग्री कॉलेज की क्लासेस भी साथ में लगती हैं एंड हमारी क्लासेस भी। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड लेक्चर थिएटर्स हैं, जैसे कि लेक्चर थिएटर 1 एंड लेक्चर थिएटर 7 जो है दैट वाज डेडिकेटेड टू आवर स्टूडेंट्स ओनली। इन दैट बिल्डिंग इटसेल्फ वी हैव द लाइब्रेरी, जो कि 7 से 8 बजे तक खुली रहती है शाम के। एंड इफ़ वी हैव टू इशू बुक्स एंड ऑल, उसके बाद भी वी कैन सेट एंड स्टडी। क्लोजिंग लिमिट्स मुझे नहीं पता, बट वी कैन स्टडी देयर फॉर एज लॉन्ग एज वी वांट। सो एज वी नो कि देयर आर टोटल 120 MBBS सीट्स, जिसमें से 85% सीट्स जो हैं वो HP कोटा से फिल होती हैं एंड 15% जो हैं दैट इज विद दी ऑल इंडिया कोटा। If we talk about the campus and academics, then in the Khand Chandi Palace we have lecture theatres. In the lecture theatre we have smart boards and they are pretty big to accommodate all of the students. If we talk about the labs, then we have anatomy dissection hall, the physio lab and the biochemistry lab, all are well equipped. So if we talk about teachers, so teachers are well educated and full of knowledge. आपको पता होना चाहिए how to extract the best knowledge out of them. So teaching style is mix of theory and early clinical exposure. In the first year हमको बस clinical case based studies सिर्फ पढ़ने को ही मिलेंगी, but in the second year we'll get the actual clinical exposure, क्योंकि second year से हमारी clinical postings शुरू होती हैं and we'll get the exposure that is needed to become a doctor. So attendance is mandatory. 75% attendance is compulsory for the theory and 80% attendance for the practicals. If we talk about the schedule, then schedule is like that we have classes from 9 to 4. उसमें से 9 से 12 बजे तक we have the first class, that is the longest one, जिसमें से हमारे पास 9 से 10, usually it is like that, 9 से 12 पूरा dedicated time है for the anatomy and they have to decide whether they want to take the theory class first and then the dissection hall or first the dissection hall then the classes. हमारे केस में we have 9 to 10 class and then 10 to 12 we have the dissection hall in which we dissect the cadavers and learn from the specimens and bones, and we have dedicated table teacher allotted जो कि हमको सिखाते हैं and काफ़ी interactively we get to learn things. This was all about 9 to 12 and from 12 to 1 एक घंटे की theory class होती है. It can be of physio or can be of biochemistry, and 1 से 2 we have the lunch time and from 2 to 4 we have a lab class. ये लैब जो होती है वो फिजियो की हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री की हो सकती है. दिस इज द टाइम जिसमें 80% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, जबकि सेकेंड हाफ में खाना खाने के बाद क्लासेस लगाने का मन तो नहीं करता है, बट अटेंडेंस इज कंपल्सरी, नहीं तो आगे चल के एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जा सकता है. एंड थोड़ा सा हमको मौका दिया जाता है अपनी अटेंडेंस को सुधारने का, तो हमको एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ती हैं. सो ये चीज़ हमको पहले से ही अपने दिमाग में रखनी है. एज वी नो कि हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, और जिस ऑर्डर से मैंने बताया उस ऑर्डर से ही हम प्रायोरिटाइज करते हैं इन सब्जेक्ट्स को. वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी लैग हो जाती है, तो बायोकेमिस्ट्री में पहले से ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. फॉर एनाटमी वी फॉलो BD Chaurasia, the one and only, and we also use dissector, that is Cunningham, and we can use Atlas too. Then for physio we have
we have Guyton and Ganong, and GK Pal for theory purposes. For Physics Practical, we have CL Ghai. For Biochemistry, we have Vasudevan, and for Practicals, we have Ranjana Chawla. If we talk about the hostel or PG life there, then for hostels, as we know कि नए कैंपस में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल्स डेवलप हो रहे हैं और धीरे धीरे करके हॉस्टल्स अलॉट भी हो रहे हैं. आई डोंट नो फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल्स अलॉट होंगे कि नहीं होंगे. एज हमारे लिए भी हॉस्टल्स अलॉट नहीं हुए हैं अभी तक. हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए अलॉट हुए हैं, वो भी पुराने कैंपस में ही. तो इस चीज़ का है. आई डोंट नो अबाउट द हॉस्टल चार्जेस, बट वी टॉक अबाउट द रूम्स और पीजीज जो कि हम आसपास ले सकते हैं, देन द रेंट ऑफ पीजी कैन वेरी फ्रॉम 5,000 टू 10,000 और इवन अबव. पीजी के रेंट काफ़ी वेरी करते हैं आसपास. अब आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखानी पड़ेंगी टू गेट द बेस्ट रूम एट द बेस्ट प्राइजेस. इफ वी टॉक अबाउट द मेस, देन यहाँ पे आसपास टिफिन सर्विसेज हैं, तो वी कैन यूज टिफिन सर्विसेज जो कि 50 to 60 और इवन अबव इस डाइट पे खाना प्रोवाइड करते हैं. सुबह, दोपहर एंड शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. एंड ऐसी बात नहीं है कि आप स्किप नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज स्किप एनी ऑफ मील यू वांट एंड बाहर जाके भी खाना खा सकते हैं. इसमें मैं ये बोलूँगी कि हमको पर्सनली इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत आई है कि हम एक टिफ़िन सर्विसेज से खाना लगाते हैं और फिर हम बोर हो जाते हैं, फिर हम दूसरी टिफ़िन सर्विसेज से खाना लगाते हैं, हम वहाँ से भी बोर हो जाते हैं. तो ये वाली चीज़ थोड़ी देखने लायक है. मतलब किसी का भी खाना हमको उतना पसंद नहीं आता है, बट वी हैव टू एडजस्ट. हम कुछ भी नहीं कर सकते. सुबह के टाइम पे अगर हमारी एनाटॉमी की क्लासेस हो रही हैं, देन हम कैंटीन से भी खाना खा सकते हैं अपनी कॉलेज की कैंटीन में. वहाँ पे काफ़ी फेयर प्राइसेस में आपको सुबह का खाना मिल जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स एंड पार्टीज, तो हर एक त्यौहार काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. माई फेवरेट वन इज़ दी होली पार्टी. काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाती है, एकदम गाने बजे होते हैं एंड वी आर जस्ट डांसिंग. फ्रेशर्स के लिए वी हैव फ्रेशर्स पार्टी जो कि ऑर्गेनाइज करेंगे हम. वी हैव ऑरिकल जो कि हमारा फेस्ट होता है. इफ वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंट, देन चंबा का एनवायरमेंट काफ़ी पीसफुल है. वी टॉक अबाउट द ग्रीनरी एंड पूरे हेक्टिक दिन में थकने के बाद जो चौगान की वॉक है, दैट इज़ द बेस्ट. वी टॉक अबाउट द पीपल हियर, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड उतना बुरा भी नहीं है. आपको अच्छे से बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपने मकान मालिक के साथ. ऑब्वियसली रैगिंग, तो रैगिंग एज सच नहीं होती है, एंड विच इज़ देयर इज़ एन इंट्रैक्शन जो कि ऑफिशियल इंट्रो भी होती है, जो कि जैसे हर यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे इंट्रैक्शंस होती हैं. एंड ऑफिशियल इंट्रो में पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है, बट एक इंट्रो देने के लिए तो सारे सीनियर्स बैठे होंगे एंड जूनियर्स जो हैं वो एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इट इज़ ऑफिशियली इन फ्रंट ऑफ टीचर्स. तो इससे डरने वाली बात नहीं है. सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के क्लिनिकल में सीनियर्स जूनियर्स के काफ़ी काम आने वाले हैं. तो हमको एक दूसरे के काम आना है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना है. और क्योंकि सारी मस्ती भी सीनियर जूनियर साथ में करने वाले हैं. फॉर दी स्पोर्ट्स, तो फाउंडेशन कोर्स में जो 3 से 4 बजे का टाइम है वो आपको फुल्ली डेडिकेटेड होगा फॉर दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी. आप कुछ भी खेल सकते हैं. एंड what we used to play volleyball, badminton and chess, carom board, and you can play video games too, but that is just for the foundation course वाला time. उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम स्पोर्ट्स से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं. वी हैव स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज्ड टाइम टू टाइम. हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, वेदर इट बी ऑफ टीटी, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस एंड व्हाट नॉट. सो अच्छे से पार्टिसिपेट करना है हर एक चीज़ में, और मज़े करने हैं. लास्ट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्स, देन एग्जाम्स में वी हैव द फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, द सेकेंड टर्म, एंड देन प्री फाइनल्स एंड फाइनल्स. टाइम के साथ आपके
सिलेबस की प्रिपरेशन होती रहेगी, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है एंड यू विल डू अ ग्रेट जॉब. ऑल द बेस्ट. सो ये था क्विक गाइड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज. इफ यू टारगेटिंग MBBS हियर, then I hope it clears many of your doubts. अगर कोई और क्वेश्चन है then drop it down in the comments. मैं ज़रूर आंसर करूंगी. And if you like this video, then you know what to do. As a senior, I'm very excited to meet my juniors. So I hope आप भी काफी excited होंगे. And for that time, take care. Bye bye. I'll wait for you.